प्लीज आप कल करा देंगे, कल करा देंगे यार। Okay, write down theorem. Write down the angle subtended by the angle theorem है the angle subtended by an arc, the angle subtended by an arc। कुछ वैसे भी इनिशियली कुछ कराया भी गया था ना, कितने क्वेश्चन भी कराया गया था थ्योरम के बाद, कितने क्वेश्चन कराए गए? नहीं, कितने थ्योरम कराए गए थे? कुछ याद है? आपकी कॉपी में लिखा होगा। कुछ नहीं, कॉपी हो गया। और 15.1 के क्वेश्चन, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन 15.1 के कितने क्वेश्चन कराए गए? ओनली फर्स्ट कंप्लीट ऑल पार्ट्स। ओके, ठीक है, अब क्लियर हुआ ना? चलो, कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज 15.1। Before going to exercise question, once again I would like to revise you the theorem. Listen carefully. The first theorem was angle subtended by an arc at the center is just double at the circumference. Clear? Suppose that you are taking this arc, then the arc subtended by this arc at the center is just double at the circumference. This was the first theorem. Okay. Suppose that this angle is 30 degree, then what is the measure of this angle? 60 degree, just double of this one. If this is angle A and this is angle O, then angle C is just 2 times of angle A. पहला theorem. What was the second theorem? The second theorem is angle in a same segment are equal. Angle in a same segment are equal. Tell me what is the segment? What is segment? Region bounded by arc and chord. देखो, अगर this is the chord, तो there are two segment. One is major segment. ये पूरा region segment होता है, ठीक है? And this one is the minor segment. If there are two angles by the same arc in a same segment, suppose that we are taking this arc
and angle subtended by this arc is this one, and again in this segment the same arc subtend here at this point, angle this one A, angle B. So both will be same, angle A equal angle B. Clear है? एक ही सेगमेंट में अगर सेम आर्क कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. Suppose that here is a question. This is 30 degree. Then what is the value of x? Okay, the value of x is 30 degree. And the third question was, third theorem is the angle subtended. Sorry, in a semicircle, the angle in a semicircle is 90 degree. Clear? See here. This is a circle and this one is diameter. What is the measure of this angle? 180 degree, and this angle at the center is subtended by this arc. Then the angle subtended by this arc at the center is how much? 90 degree, because it is just half of this one. Okay? This is half of 180, that is equal to 90 degree. These are the theorem related to these. These are the theorem related to this exercise. Clear है? So come to the second question, second part. Question number second, first part. The question is, here is a circle and it is given here like this. A, B, C, D. You have to find the value of x, and the given is, this one is 40 degree. Bolo, what is the measure of x? How can you find? Angle B. AC is the diameter. Listen, this one is the diameter it is given. This one is diameter, because AOC is AOC है. AC is passing through the center, so this one is diameter. Then what is the value of this? 40 plus 90. देखो, what is the measure of this angle? 90 degree. Angle B equal 90 degree. Angle region क्या लिखोगे? Angle in semicircle. Angle in semicircle. यहाँ पे लिखेंगे angle in semicircle. या तो ऐसे लिखे या बाय द थ्योरम लिखे. ठीक है? ऐसे. With then angle C is how much? 180 minus 90 plus 40. 180 minus कितना? 50 degree. 150. Then 50 degree. Then what is the measure of this angle? 50 degree. Then x is equal to region, angle in same segment. So x equal 50 degree, because x पहले तो x equal angle C लिखेंगे, then 50 degree लिखेंगे. यहाँ पे angle in same segment. क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, रीजन देते हैं. ठीक है, रीजन देते हैं. Now next part.
कुछ पार्ट्स करा दे रहे हैं, बाकी आप करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, this is 62 degree, this is x, and O is the center. O is the center. Then what is value of x? How much? 62 degree. Reason? हाँ, बोलो ये एंगल कितना आएगा? 62, ठीक है। This one is 62 because इसका नाम दे दे, नाम दिया होगा? No, it is not given. A, B, C, D. तो आप लिखोगे ना O A equal O C, then angle C equal how much? 62, ठीक है। अब देखो, these are subtended angle X and these are also subtending angle C. Then X is equal to angle C. This is equal to 60 degree angle in a same segment. सेगमेंट दिख रहा है ना? इसी आर्क से एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ए बी डी, जो कि एक्स है, और इसी आर्क से सेम आर्क से एंगल डी सी ए बन रहा है। तो सिंस these are both the angles are in a same segment, so these are equal, x equal 62. Now come to the third part. Third part. Will you try? Will you try third part? No. Ansika and find the answer. And others? What is the value of x? 75. How can you find this value? देखो पूरा टोटल x पूछ रहा है आपसे। हाँ, क्योंकि रीजन देखो, जिनको नहीं समझ में आया वो रीजन देख लो। देखो ये 130 है and this angle is 80 degrees and the question is find the value of x. You know this is center and at the center total angle is 360. So this angle is equal to 360 minus 130 plus 80. 360 minus 200, 210 ना, 210 में से माइनस करो कितना आएगा? 100. Then what is the value of this angle? 75, because the angle subtended by the arc at the center is just half at the circumference. Clear? So x is half of 150 is equal to 75 degree. I hope your question is clear. By the theorem लिख दो, ठीक है? या तो बाय थ्योरम लिखे या एंगल एट द सेंटर इज डबल एट द सर्कमफ्रेंस। फोर्थ पार्ट, बोलो हाउ कैन यू फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल x? x को कैसे मेजर करोगे? देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 75,
इसको सपोज दैट आप क्या कंसीडर एंगल ए बी सी इक्वल 180 माइनस 75 105 एंगल ए बी। अब इसको देखो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे समझना, दिस इज द आर्क, दिस इज अ आर्क which subtend angle at the circumference ABC। देखो इसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है ABC, दिस एंगल which is equal to 105। तो इसी आर्क से सेंटर पे कौन सा एंगल आएगा, x आएगा, ठीक है, x आएगा, ये एंगल नहीं आएगा, ये एंगल तो इस आर्क से बनेगा, सेंटर से ये एंगल आएगा x, तो x जो है इसका कितना आएगा बोलो, डबल, then x is 2 times of ABC, 2 into 105, how much, 200, this is the value of x। क्वेश्चन नंबर 5, A to B tell me what is the value of x, students, what is the value of x, see what is the measure of this angle, 180 minus 135, इसका नेमिंग कर लो, नेमिंग सी है और ये कौन सा पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं, तो एंगल BOC इक्वल 180 माइनस 135, how much, 45। अब देखो सेगमेंट कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे, सी दिस इज एन आर्क, देखो ये आर्क है, ठीक है, इस आर्क से सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म हुआ है 45, और यही आर्क जो है सर्कमफ्रेंस में कितना एंगल फ्रेम कर रहा है x, तो x सर्कमफ्रेंस का एंगल है और BOC सेंटर का एंगल है जो कि 45 है, तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल हाफ ऑफ BOC, क्लियर ना, एक ही सेगमेंट में सेंटर का एंगल और ये सर्कमफ्रेंस का एंगल है, x is just half of the BOC, then 1 by 2 into 45, 22 and half degree. This is the value of x. Question number 6 part. तुम लोग आपस में पढ़ने लगे क्या? बोलो इस फिगर में व्हाट इज द मेजर ऑफ x, ये गिवन है 70, ये 70 गिवन, द मेजर ऑफ x इज हाउ मच, 55, डन, कितने बच्चे कर लिए इसको, क्वेश्चन नंबर, तो अब आपके ऊपर छोड़ते हैं आगे के क्वेश्चन को, ठीक है, चलो डू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 and 4,
और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन आप बोल देना। Listen students, do according to class, okay? इसका नहीं नहीं, अब आप करते जाओ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा वो पूछना। कंप्लीट, यू हैव डन कंप्लीट होल एक्सरसाइज, वेरी गुड। चलो जिनका नहीं हुआ है करो। अंशिका आंसर को भी बता दे चलो, क्योंकि इसको कराओ, आप इसी को कराओ। अंचल एक एक क्वेश्चन पूछते जाओ, वो सब हाँ समझते जाओ। नोट आ गई स्टूडेंट? Question number 3 done. Anyone? Question number 4. Asika, you have done that. Don't tell me, okay? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अभी नहीं कराया गया ना थ्योरम? ओके स्टूडेंट लिसन, आप थ्योरम कर लो, घर से क्वेश्चन करके ले आना, जो प्रॉब्लम आएगी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगले कुछ चैप्टर का थ्योरम लिखो। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ, राइट ए थ्योरम एवरीवन, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ opposite angle, the sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. What are you doing students? थ्योरम लिख रहे हो? क्यों? The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. You know the cyclic quadrilateral is a quadrilateral with all four vertices are on the circle. Okay, that is a cyclic quadrilateral. This is the center. Now the angle, इसका नंबरिंग करते हैं।
1 और इसको 2 कर देना, ठीक है। तो एंगल 1 इज 2 टाइम, इसको 3 कर दे रहा है, इसको 4 कर दे रहा है। ये 20 दिख रहा है, देखना ये वो है, ये एंगल 2। तो एंगल 1 इज 2 टाइम ऑफ एंगल 3। अरे सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का कितना आएगा, डबल, ठीक है। तो ये आर्क बीडी आर्क है, इस आर्क पे सेंटर पे एंगल कितना बना, एंगल 1। एबीसीडी कंसीडर कर दे, चलो एबीसीडी कर, ऐसा कर ए बी सी और डी, तो ठीक है ना। चलो देखो, पर एबीसीडी नेमिंग में दे रखा है तो एक्स वाई जेड, क्योंकि नेमिंग में एबीसीडी दे रखा है, एक्स वाई जेड, इसको क्या नाम है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे एक्स इज 2 टाइम ऑफ जेड, क्लियर है ना। x is 2 time of z, और what is reflex of x, y। so reflex of x is what, y, और y किस आर्क पे एंगल है, देखो इस आर्क से सेंटर का एंगल है y, ये किसके डबल आएगा, p के डबल। तो y इक्वल 2 टाइम ऑफ p, ठीक है। Now sum these two, x plus y equal 2 time of z plus 2 time of p, take common 2 z plus p equal x plus y। बोलो what is the measure of x plus y, 360, क्योंकि पूरे सेंटर पे टोटल 360 का एंगल फॉर्म होगा, तो 360 इक्वल 2 टाइम ऑफ z प्लस p, और 2 से डिवाइड करोगे 180 इक्वल z प्लस, and z is what, z is c and p is a, then it confirms angle a plus angle c is 180 degree, which is a theorem कि either pair of opposite side, मतलब इसका अपोजिट ये दोनों का सम 180 है। सिमिलरली व्हाट यू कैन प्रूव हियर, हाँ सिमिलरली यू कैन प्रूव कि एंगल b प्लस एंगल d इक्वल 180। अब ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे, जब आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा तो वहां पे आप डायरेक्ट जो है 180 डिग्री यूज करोगे, ठीक है। नोट डाउन, नोट डाउन। एक्सटीरियर एंगल का भी तो हो गया था थ्योरम, रिटर्न, टेल मी, रिटर्न, आया ना का जवाब तो दो, अभी देखें। राइट द नेक्स्ट थ्योरम, एंड एक्सटीरियर एंगल का, लेकिन बी श्योर की थ्योरम आपको एग्जाम में नहीं आना है, एक भी थ्योरम नहीं आएगा, प्रूविंग का तो क्वेश्चन आना ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना है, जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वैल्यू अभी इसके पहले कर रहे थे वही क्वेश्चन आना है, क्लियर। लिखो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to the interior opposite angle, is equal to the opposite interior angle,
हमारे समझ से दो ही है, टेंजेंट के कुछ क्वेश्चन है, साइक्लिक के हैं, और फिर जो पहले पढ़े उतना ही है सिलेबस में, इससे ज्यादा बाकी तो रिमूव। हाँ मतलब वही एक दो पॉइंट्स हैं और ठीक है। नेमिंग करें ए बी और इसको क्या बोलते हैं सी, ठीक है। फिर ये वही ए बी सी में आ गया एक्स वाई जेड वाई एक्स वाई जेड। टेल मी वाई प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर, और x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री रीजन एंगल अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल का सम अभी जस्ट थ्योरम में देखा है। तो दीज टू आर इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second. If the right hand side is equal, then you will say y plus z equal x plus y cancel out, then x equal z। देखो z एक्सटीरियर है और इसी के जस्ट अपोजिट इंटीरियर इक्वल है, ठीक है। Hence the theorem, यह प्रूव है, ठीक है। नो डाउट। एक लाइन बहुत कर सकते हो तो बढ़ा सकते हैं एंगल सी। हाँ ले लीजिए एंगल सी बी इक्वल एंगल ए डी। Asika, have you done 15.2 also? 15.3? Okay students, 15.1 में 3 4 किसी को कोई दिक्कत आया नहीं? 5 में देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, there are two parts A and B, try these two। क्योंकि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन छोड़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आना है, इसलिए क्वेश्चन मत छोड़ना। जो न्यूमेरिकली क्वेश्चन है उनको मत छोड़ना। प्रूविंग का एक मतलब जैसे प्रूव करना है कुछ, उसको छोड़ दो, प्रूविंग आएगा ही नहीं। न्यूमेरिकल जहां पूछ रहा है उनकी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो इन द गिवन डायग्राम एम A, B, N are the points on a circle having center O, N, Y, B, Y and B is given. Find M, A, N and the reflex of M, O, N। ठीक है, do this one, do this one। अगर M, A, N फाइंड कर लोगे तो M, O, N का रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 100, 240 ना, 220। डू फास्ट, 5 मिनट और रह गए, थोड़ा फास्ट करो। अब आप एक्सरसाइज ही करो कर, लेकिन कल कंप्लीट करके आना, ठीक है।
जितना हो सके पॉसिबल क्वेश्चन करके आना, ताकि टेंजेंट कराने के बाद सिलेबस खत्म आपका। टेंजेंट ही लास्ट है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद टेंजेंट आपका लास्ट है। और सर्कल में ज्यादा टाइम वेस्ट करना कोई मायने नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, this is a circle and this one is a center A O B. This is given. This is given 40 degree, नहीं sir 50 degree, and this is equal to 140. In the diagram given second, below is the center of circle AOB and OAC is given. Find ACB. ACB इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इधर से, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल 360 माइनस 140। भाई ये टोटल 360 होता है ना, तो 360 में से 140 माइनस करो, कितना आएगा 220। 220। अब ऐसे समझो, दिस इज एन आर्क, this is an arc which subtend angle at the center is how much 220. This the measure of this angle is 220. Then by this arc at the circumference, by this arc at the circumference is half, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एंगल ACE is just half of 220 is how much 110। ACB निकल गया। अब ACB ये 110 हो गया। बोलो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल का सम कितना होता है 360। तो sum all these angles and subtract from 360 you will get OBC, ठीक है। OBC मिल गया। फिर पूछ रहा है OAB। OAB में जो है इस OAB फाइंड जब करोगे तो इसमें रेडियस OA एंड OB विल बी इक्वल, केस मार के करना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।